Okay, starting with a brief introduction of myself for the new candidates who don't know about me. I'm a graduate of Rawalpindi Medical College and currently I'm working as a second year resident at OBS Gynae Unit 1 Holy Family Hospital. I did my house job back in April 2018. Then I took my part one in September 2018. I passed it in the first attempt and then I got inducted in the very next induction of January. In order to pass part one, you have to be very precise in your approach. What you have to do is basically you have to study smart, like we always say. It's in a way very easy to pass this exam if you know the correct approach. Let's see how many students have joined. Okay, let's start with our topic, which is phases of menstrual cycle. Okay, this lecture, like I said, the approach to pass this exam is to study smart. Okay, you have to work hard, but you more importantly, you have to study smart for this exam. Okay, so this lecture, it would include all those maximum points that you need to know regarding this topic for your part one preparation. Okay, so we keep it really precise to the point. We'll include all the maximum points that you need to know for CPSP for this exam, and we'll keep try to keep it as clear as we can, okay, in order to avoid any confusion. Okay, so let's start. So phases of menstrual cycle, it has basically two cycles. Okay, let me get a highlighter. Okay, we have ovarian cycle, and simultaneously in uterus we have endometrial cycle going on. Okay, so ovarian cycle is divided into three phases: follicular phase, ovulation, and luteal phase. And the endometrial cycle is divided into proliferative phase, secretory phase, and menstruation. Okay, what you guys need to do for this topic is to keep this picture in your mind. Okay, मैंने ये पिक्चर आगे हर स्लाइड में इंक्लूड किया ताकि ये रीइंफोर्स हो जाए, because if this picture will be in your mind, you will be able to solve all the MCQs and all the queries regarding this topic. Okay, it is one of the most confusing topics for the students. I have tried to keep it as simple as I could. ठीक है, ताकि आप लोगों का इजीली इसके सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाएं, और इसमें सिर्फ वही चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत है पार्ट वन के लिए. ठीक है, हम अननेसेसरी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है, ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे. और सो लेट्स स्टार्ट विद ओवेरियन साइकिल. सबसे पहले हम आ जाते हैं ऑन द फॉलिकुलर फेज. व्हाट यू नीड टू नो इज इट इज़ ऑफ 14 days. Okay, it is of 14 days, and in this cycle, अच्छा पहले इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लें. ठीक है, यहाँ पे हार्मोनल लेवल्स है, सबसे ऊपर नीचे आपकी एंडोमेट्रियल साइकिल है और सबसे नीचे आपकी ओवेरियन साइकिल है. ठीक है, जो आपका एस्ट्रोजन है ना, वो यहाँ पे ब्लू लाइन से मेंशन्ड है. जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन डार्क ब्लू लाइन से है, प्रोजेस्टेरॉन लाइट ब्लू से है, एलएच आपका ये रेड से है, और एफएसएच जो है ये ब्राउन से है. ठीक है, now let's correlate with ovarian cycle. जो follicular phase है ना, उसमें estrogen dominance होती है. Look at this dark blue line demonstrating estrogen. ठीक है, here there is dominance of estrogen, but most importantly what you need to know is the pattern of rise of estrogen. Okay, that is steady rise. You need to know this for MCQs, it is commonly asked. Okay,
Okay. Now what happens basically is initially FSH का लेवल ये देखें हाई होता है, ठीक है. ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन ये लो होते हैं. इनहिबिन भी एक एंडोक्राइन मीडिएटर है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जो कि बेसिकली एफएसएच की नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कर रहा होता है. तो जब भी एफएसएच ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन आपके जो है वो कम होते हैं. हम आगे भी इनका कोरिलेशन देखते हैं, ठीक है. ये नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन होती है. अच्छा, अब हो रहा क्या होता है बेसिकली, हमें पता है कि हमारे की जो फॉलिकल्स होती है ना, उनके अंदर टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं. थीका सेल्स होते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, ठीक है. जो थीका सेल्स होते हैं ना, ये अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच होते हैं. जो ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच. So what basically happens is LH converts cholesterol into androgens in theca cells. Okay. Then what happens later is these androgens, they are converted into estrogens by a process of aromatization in the granulosa cells under the effect of FSH. ठीक है. सबसे पहले क्या होता है कि थीका सेल्स के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो एंड्रोजेंस में कन्वर्ट हो जाता है अंडर द इफेक्ट ऑफ एलएच. ठीक है. फिर अब इस एंड्रोजन से एस्ट्रोजन कैसे बनता है? बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन. ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि एरोमेटाइजेशन क्या होती है. इसमें बेसिकली एंड्रोजेंस आर कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोजन. दिस प्रोसेस अकर्स इन ग्रैन्युलोसा सेल्स अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच. ठीक है. अच्छा, अब होता क्या है बेसिकली, जो फॉलिकुलर फेज है 14 डेज में क्या हो रहा होता है, आपकी ईस्ट्रोजन का स्टेडी राइज हो रहा होता है. ठीक है. ये राइज कैसे हो रहा होता है कि वही एलएच जो है वो कोलेस्ट्रॉल को पहले एंड्रोजेंस में कन्वर्ट करता है, और वो एंड्रोजेंस जो है ये ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होते जाते हैं, और ईस्ट्रोजन का ये स्टेडी राइज आता जाता है. ठीक है. बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन. अब क्या होता है कि हमें पता है कि जो फॉलिकल्स हैं वो ग्रो कैसे करती हैं, अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच ग्रो कर रही होती हैं. ठीक है. तो जब इनका मैक्सिमम लेवल होता है, एक फॉलिकल जो है जो अपने मैक्सिमम लेवल पे साइज पे पहुंच जाती है, उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं. ठीक है. उसका साइज क्या होता है? अप्रॉक्सीमेटली 20 mm का होता है. इसमें मोस्ट एफिशिएंट या मैक्सिमम एरोमेटेज एक्टिविटी होती है. ठीक है. मतलब एस्ट्रोजन फॉर्मेशन एक्टिविटी, और हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है इसमें एफएसएच इंड्यूस्ड एलएच रिसेप्टर्स की. डोमिनेंट फॉलिकल से रिलेटेड आपको ये 3 इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए. साइज 20 mm, मोस्ट एफिशिएंट एरोमेटेज एक्टिविटी, एंड हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच इंड्यूस्ड एलएच रिसेप्टर्स. ठीक है. तो फॉलिकुलर फेज में जो मेजर बातें पता होनी चाहिए वो क्या है? इट इज ऑफ 14 डेज. इन दिस देयर इज एस्ट्रोजन डोमिनेंस एंड द पैटर्न ऑफ राइज इज स्टेडी राइज. आगे अभी हम ओव्यूलेशन में पढ़ेंगे कि वहां पैटर्न क्या होता है, एक सडन सर्ज आता है. ठीक है. लेकिन सडन बर्स्ट आता है, लेकिन यहाँ पे बहुत स्टेडी राइज होता है. ठीक हो गया. और जब एफएसएच राइज कर रहा होता है तो जब एस्ट्रोजन राइज कर रहा होता है तो एफएसएच जो है वो फॉल कर रहा होता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन. ठीक है. और जब ये एफएसएच फॉल कर जाता है तो फॉलिकल्स की ग्रोथ अब वहां रुक जाती है. एक जो फॉलिकल जो उसके इफेक्ट में मैक्सिमम साइज पे पहुंची होती है उसको हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं, जिसका साइज 20 mm का होता है और उसमें मोस्ट एफिशिएंट एरोमेटेज एक्टिविटी होती है. ठीक है. फॉलिकुलर फेज के बाद हम आते हैं ओव्यूलेशन पे. ठीक है. जब फॉलिकुलर फेज था ना, उसके लिए आपने साइकिल का डायग्राम का ये वाला पार्ट याद रखना है. ठीक है. अब हम आ जाते हैं अपने ओव्यूलेशन पे. उसके लिए आपने ये वाली पार्ट याद रखना है थोड़ा. ठीक है. ओव्यूलेशन होती कब है? मोस्ट ऑफनली रिपीटेड एमसीक्यू ऑन 14th डे होती है. ठीक है. और होती कैसे? बेसिकली हमने पढ़ा फॉलिकुलर फेज में यहाँ पे एस्ट्रोजन का स्टेडी राइज हो रहा था. ठीक है. जब एस्ट्रोजन अपने मैक्सिमम लेवल पे एकदम से एस्ट्रोजन बर्स्ट आता है ना, तो तब हमारे पास ये साथ ही एलएच सर्ज आता है एकदम से. ठीक है. ये रेड लाइन देखें, ये एलएच सर्ज को शो कर रही है. ब्लू लाइन जो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे ये शो कर रही है ईस्ट्रोजन बर्स्ट. तो 14th डे ऑफ साइकिल पे जब हमारे पास ईस्ट्रोजन बर्स्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? एलएच सर्ज होता है और आपकी क्या होते हैं? बेसिकली ओव्यूलेशन होती है. It takes approximately over 24 to 36 hours. Okay. अच्छा, अब जब आपके पास ओव्यूलेशन हुई तो बेसिकली हो क्या रहा होता है? फिजिकल इफेक्ट्स यहाँ पे क्या आ रहे होते हैं? देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ फॉलिकुलर वॉल. ओके, दिस वन. अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएच,
LH, and the proteolytic enzymes. Okay, these proteolytic enzymes include plasminogen activators and the prostaglandins. Okay, so basically what happens is here, there is LH induced luteinization of granulosa cells which releases progesterone. आगे हम पढ़ेंगे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है जब ओव्यूलेशन हो जाती है, ठीक है, और वो कैसे प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है और फिर हमारी एंडोमेट्रियम उस वक्त सिक्रीटरी फेज में गई होती है, वो हम एंडोमेट्रियम के साथ देखेंगे। यहाँ पे जो आपने ओव्यूलेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज में बातें आती हैं, 3 इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है विद इज कि ये 14 डे ऑफ साइकिल पे होती है ओव्यूलेशन, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन बर्स्ट आता है, एलएच सर्ज होता है और oocyte रिलीज हो जाता है, ठीक हो गया। इसी पॉइंट पे आपका जब इस प्रोजेस्टेरोन राइज कर रहा होता है साथ ही, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी राइज करना स्टार्ट हो जाता है, तो आपके एंड्रोजेंस भी राइज करते हैं। वो क्यों करते हैं? ताकि इंक्रीज सेक्सुअल एक्टिविटी हो। ये जो आपको फर्टिलिटी का एक पीरियड है जहाँ पे मैक्सिमम फर्टाइल एक्टिविटी होनी है, तो वहाँ पे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी ज्यादा हो ताकि फिर आगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्ट वो सब कुछ फीमेल कंसीव करे, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज में हमने क्या बातें याद रख ली कि 14 डेज का था। वहाँ पे आपकी जो थी ईस्ट्रोजन डोमिनेंस थी, स्टेडी राइज था ईस्ट्रोजन का, और एफएसएच फॉल करना शुरू हो गया था और एक डोमिनेंट फॉलिकल आपकी बन गई थी 20 mm साइज की। नेक्स्ट ओव्यूलेशन में आपने क्या याद रखना है कि 14th डे ऑफ साइकिल पे हुआ है, ईस्ट्रोजन बर्स्ट आया है, एलएच सर्ज हुआ है और ओव्यूलेशन हो गई है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं अपने ल्यूटियल फेज पे जो कि नेक्स्ट 14 डेज, ठीक है, 14 डेज का है। यहाँ पे जब आपका oocyte रिलीज हो गया और कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है, ये वाली आपने डायग्राम का पार्ट याद रखना है फॉर योर ल्यूटियल फेज। अब यहाँ पे क्या होता है, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो फिर क्या होता है, आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होना शुरू हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस आना शुरू हो गई, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में क्या थी, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस थी, ओव्यूलेशन में ईस्ट्रोजन बर्स्ट एंड एलएच सर्ज था, और जो ल्यूटियल फेज है उसमें क्या है, आपकी प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आपका बीटा एचसीजी नहीं होगा जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रहा होता है, तो क्या होगा, ल्यूटियल लाइसिस होना शुरू हो जाएगा, योर कॉर्पस ल्यूटियम विल ग्रेजुअली डिसअपीयर। Okay, so what will happen is the progesterone will start falling. Okay, so this basically progesterone withdrawal leads to the shedding of endometrium and onset of menstruation. Okay, so what happens is in luteal phase is यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हुई, प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस फेज आया, उस प्रोजेस्टेरोन की वजह से यूट्रस भी अपनी सिक्रीटरी फेज में चला जाता है विच विल सी लेटर। ओके, लेकिन अगर बीटा एचसीजी ही नहीं है जिसने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करना है, तो ल्यूटियल लाइसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाएगा। जब कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा, और प्रोजेस्टेरोन जो जिसने यूट्रस की सिक्रीटरी एंडोमेट्रियम को मेंटेन किया था वो विथड्रॉ जब होगा तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट ओवेरियन साइकिल दैट यू नीड टू नो। तीनों बातें अभी हम फर्दर भी रीडिस्कस कर लेंगे ताकि रीइंफोर्स हो जाए। वही बात है कि फॉलिकुलर फेज जो था वो हो गया आपका 14 डेज का, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस थी, एफएसएच फॉल किया और आपकी एक डोमिनेंट फॉलिकल वहाँ बनी हुई थी 20 mm साइज की। नेक्स्ट ओव्यूलेशन पे हम आए, ईस्ट्रोजन बर्स्ट हुआ, एलएच सर्ज हुआ, oocyte रिलीज हो गया, ठीक है, विच इज ऑन 14th डे ऑफ योर साइकिल। ओके, फिर नेक्स्ट क्या हुआ, जब oocyte रिलीज हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, प्रोजेस्टेरोन बनना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास बीटा एचसीजी नहीं होगा तो ल्यूटियल लाइसिस होना शुरू हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, जब प्रोजेस्टेरोन का विड्रॉल होगा तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू एंडोमेट्रियम। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम आ जाते हैं प्रोलिफरेटिव फेज पे, दिस वन। अब हम अपनी साइड बाय साइड ओवेरियन साइकिल को भी माइंड में रखेंगे और साथ अपने हार्मोनल लेवल्स को भी, ठीक है। जब यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा था तो ओवरी में कौन सा फेज चल रहा था, फॉलिकुलर फेज चल रहा था, और वो कौन सा फेज था, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस वाला। बेसिकली इस ईस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से ना आपकी ग्लैंडुलर और स्ट्रोमल ग्रोथ हो रही होती है एंडोमेट्रियम में। ओके,
A very important MCQ point that you need to remember is कि proliferative phase में the simple columnar epithelium of endometrium is converted into pseudostratified epithelium with frequent mitosis. ओके सो इस फ्रीक्वेंट माइटोसिस की वजह से क्या होता है कि जो आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस स्टार्टिंग में 0.5 mm की थी दैट रीचेस अप टू 3.5 to 5 mm. Okay, you need to remember these two things. Okay, so the proliferative phase, it is under the effect of estrogen. There is glandular and stromal growth here, and the simple columnar epithelium is converted into pseudo-stratified epithelium with frequent mitosis and reaches the thickness of up to 3.5 to 5 mm. Okay, so we are clear about this. We are clear about our follicular phase, about the estrogen dominance in that phase, and the proliferative phase of the endometrium under the effect of that estrogen. Okay, so this portion of the diagram is very much clear to us. Now let's move to secretory phase. So secretory phase में क्या होता है हमारे पास endometrial glands जो होते हैं ये they become tortuous. How? Under the effect of progesterone. Okay, now look at this. This is the secretory endometrium. This is the progesterone dominance. And this is here corpus luteum, which is responsible for this progesterone. Okay. So what happens is under the effect of this progesterone, the endometrial glands, they become tortuous, the spinal arteries grow, and there is secretion of fluid in the glandular cells and uterine lumen, which leads to formation of a temporary layer decidua. Okay. There is formation of prenopores after the day 21 and 22. You don't need to remember this, but what you need to remember is there is formation of tortuous endometrial glands. The spinal arteries keep on growing, and there is secretion of fluid in the glandular cells and uterine lumen, which is basically responsible for the secretory endometrium. Okay. Now coming to menstruation, what happens is we studied कि अगर beta HCG नहीं होगा, corpus luteum maintain नहीं रहेगा, it will keep on regressing and progesterone will start falling. And due to the withdrawal of this progesterone, there is shedding of endometrium. When does menstruation happen? It occurs on the first day of the cycle, okay? You need to remember this. This is frequently asked in MCQs, okay? There is shedding of dead endometrium due to progesterone withdrawal on the day 1 of cycle that leads to onset of menstruation. Okay, so what happens is there is fall in estrogen and progesterone. There is loss of tissue fluid for which progesterone was responsible. There is vasoconstriction of spiral arterioles, which basically leads to distal ischemia. So basically necrosis होना start हो जाता है, shedding of endometrium start हो जाती है. ये जो day 1 of cycle पे start होती है, mostly ये after 5 to 10 days bleeding stop हो जाती है. Okay. So are we clear about this? I'll take up the questions later. इसको हम wind up करते हैं थोड़ा, then we will discuss our MCQs. Okay. क्या हुआ सबसे पहले 14 days का हमारे पास follicular phase था, ठीक है, जिसमें हमारे पास ईस्ट्रोजन डोमिनेंस थी और FSH फॉल करना शुरू हो गया था. ठीक है, ये ईस्ट्रोजन डोमिनेंस कैसे आई थी कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा था एंड्रोजेंस में. ठीक है, वो एंड्रोजेंस कन्वर्ट हुए इनटू ईस्ट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ एरोमेटाइजेशन. ठीक है, FSH के इन्फ्लुएंस में वो हो रहा था. और जब ईस्ट्रोजन राइज करना शुरू करता है तो नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू FSH फॉल करता है. जब FSH की हमने पता है उसकी प्रेजेंस में जो फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं. जब FSH का लेवल फॉल करना शुरू होता है, ज़ाहिर है फॉलिकल्स अपनी मैक्सिमम साइज पे पहुंच चुके थे तब. एक फॉलिकल जो है उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है, वो डोमिनेंट फॉलिकल होती है, बाकी सब रिग्रेस कर जाती है. ठीक है, ये डोमिनेंट फॉलिकल जो है वो 20 mm साइज की होती है, मैक्सिमम एरोमेटेज एक्टिविटी होती है और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ FSH इंड्यूस्ड LH रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक हो गया. जब ये फॉलिकुलर फेज हमारे पास चल रहा होता है तो यूटरस में हमारे पास
प्रोलिफरेटिव फेज चल रहा होता है। इस एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस की वजह से प्रोलिफरेशन हो रही होती है। हमारे पास सिंपल कोलमनर एपिथेलियम सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी फ्रीक्वेंट माइटोसिस हो रही होती है और ये अप टू 5 mm थिकनेस अटेन कर लेती है, 3.5 to 5। ठीक हो गया। सो वी आर क्लियर कि जब फॉलिकुलर फेज ओवरी में चल रहा था तो हार्मोनल लेवल्स क्या थे, कि किस तरह एस्ट्रोजन के राइज ने वहाँ पे प्रोलिफरेशन कराई एंडोमेट्रियम में। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं अपने ओव्यूलेशन जो हमने पढ़ी थी। ठीक है, ओव्यूलेशन हैपेंस ऑन द डे 14th ऑफ द साइकिल। ठीक है, और होता क्या था वहाँ पे, ईस्ट्रोजन बर्स्ट आता था, उसकी वजह से एलएच सर्ज आता था और oocyte रिलीज हो जाता था। ठीक है, जिसके लिए एफएसएच, एलएच और आपके प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आपका ल्यूटियल फेज होता है वो 14 डेज का होता है। जो oocyte रिलीज होता है, कॉपस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन डोमिनेंस फेज जो होता है वो यूट्रस के कौन से फेज के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, सिक्रीटरी के साथ। अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन जो ग्लैंड्स होते हैं टॉर्चुअस हो जाते हैं, सिक्रीजन ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं और प्रेगनेंसी के लिए फेवरेबल एक स्टेट यूट्रस बनाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर एचसीजी ही नहीं होगा तो क्या होगा, ये कॉपस ल्यूटियम नहीं मेंटेन रहेगा, ये रिग्रेस करना शुरू कर जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका फॉल करना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन के विड्रॉल की वजह से बेसिकली शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम होती है और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, if you guys have any confusion in this you may ask। अच्छा, मैंने इसमें 5 MCQs इंक्लूड किए हैं, वो जो कि मोस्ट ऑफनली रिपीटेड हैं पार्ट 1 में। ठीक है, और इनके साथ मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक एक्सप्लेन कर देती हूँ एज टू हाउ टू सॉल्व दीज MCQs। अच्छा, वन ऑफ द अप्रोचेज जो हम यूज़ करते हैं वो है आप रूल आउट करते जाओ। ठीक है, अगर सपोज मैं आपको मीनोपॉज से रिलेटेड एक बात बताती हूँ। मीनोपॉज में क्या होता है, आपका ईस्ट्रोजन का जो लेवल होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, जब ईस्ट्रोजन जो है वो कम होता है तो जाहिर है एफएसएच और एलएच जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एमसीक्यू है। कभी वो आपसे इस तरह पूछ लेते हैं, सारा ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए ये एक ही एमसीक्यू में दे देते हैं, कभी इनको ना अलग अलग स्प्रेड कर देते हैं। अब देखिए, आफ्टर मीनोपॉज वी नो कि ईस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम निकाल देते हैं कि ईस्ट्रोजन का लेवल राइज होगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कम होते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ा है कि एफएसएच और एलएच जो है वो ज्यादा होता है, तो इनको भी हम निकाल देते हैं कि लेवल फॉल कर जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर रूलिंग आउट ऑल ऑफ दीज इज प्लाज्मा प्रोलैक्टिन राइज। ये एमसीक्यू काफी बार आता है। ठीक है, कभी कभार वो तीनों एक ही पॉइंट में दे देंगे कि ईस्ट्रोजन कम होता है, एफएसएच एलएच ज्यादा होता है, और कभी कभार अलग करके देते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर मीनोपॉज। एक एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक ये है कि आप रूल आउट करते जाओ। दूसरी टेक्निक क्या है, लेकिन हमेशा व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टडी द होल स्टेटमेंट thoroughly। okay, then you have to read all of the options। don't go for that कि बस ये ठीक है, मैंने सॉल्व किया हुआ है, बहुत बार किया हुआ है, यही इसका आंसर है। एग्जाम में कुछ पता नहीं होता, स्टेटमेंट थोड़ी चेंज हो जाए और ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंगली वो होता वही है, लॉजिक भी वही होती है, सब कुछ वो होते है, थोड़ा सा वो स्टेटमेंट में ऑल्ट्रेशन कर देते हैं। सो हमेशा एमसीक्यू को पूरा पढ़ना है और एक ही बार गौर से पढ़ना है, बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना, और ऑप्शंस को भी एक बार क्लियरली पढ़ना है और साथ साथ रूल आउट करते जाना है। अगर अब जिस तरह ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत ऑफनली रिपीटेड है, ह्यूमन ओव्यूलेशन इनिशिएटेड बाय एफएसएच, पहले सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। अकर्स ऑन 10th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मे नॉट अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड अकर्स आफ्टर एलएच वीक। अब मैंने आपको बताया है ओव्यूलेशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो बात याद रखनी थी वो एस्ट्रोजन बर्स्ट और एलएच सर्ज याद रखना है। अगर आपको अपने ऑप्शंस में ओव्यूलेशन से रिलेटेड एलएच सर्ज मिल गया है, चाहे आपको बाकी ऑप्शंस भी करेक्ट मिल रही हैं, लेकिन यू हैव टू गो फॉर दिस वन, एलएच सर्ज।
ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि सीपीएसपी एट टाइम्स ऐसे क्वेश्चंस देती है जिसमें 2-3 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, लेकिन फिर आपने वो जो मोस्ट फेवरेट आपने जो सीपीएसपी कभी वो आप जब प्रिपरेशन कर रहे होगे सॉल्व करोगे तो आपको पता चलता जाएगा साथ साथ कि आपने कहाँ पे कौन सी ऑप्शन क्यों प्रेफर करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड बताया कि ओव्यूलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात एलएच सर्ज है एंड यू हैव टू टेक दैट अगर वो ऑप्शंस में है, ठीक है। Okay, approximately 2 days before ovulation, the rate of secretion of LH by anterior pituitary rises by. अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने पिछली बार भी यही क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। इसको इंक्लूड करने का मकसद ये था कि आसिम एंड शुएब का एमसीक्यू है। आसिम शुएब जिस तरह मैंने पहले भी बताई है, आपने प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ठीक है। पेपर भी बहुत ज़्यादा इससे आता है। आसिम एंड शुएब इज़ अ वेरी ऑथेंटिक बुक, हार्डली उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं जिनका डाटा प्रोवाइड कर दिया था पिछली बार भी। इस ऑप्शन जो आसिम शुएब में लिखा हुआ है आपने उसको करेक्शन कर लेनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 6 to 10 fold, ठीक है। You have to basically cram it, okay? Approximately 2 days before ovulation, the rate of secretion of LH by anterior pituitary rises by 6 to 10 fold, ठीक है। According to CPSP ये correct answer है इसका। You have to mark this one, not 2 to 4 या 2 to 6 fold। यहाँ पे confusion ये लोग create कर रहे होते हैं। You have to mark 6 to 10 fold, okay? Next one is, if a female has menstrual cycle of 35 days, when will ovulation occur at what day? ये भी most oftenly repeated MCQ है। वो number of, अब हमें पता है कि ओव्यूलेशन ने होना कब है, 14th डे पे होना है, राइट? ये तो फिक्स्ड बात है, लेकिन साइकिल के डेज वेरी कर सकते हैं फीमेल टू फीमेल, ठीक है। अगर वो आपको कह रहे हैं सपोज 35 डेज का साइकिल है तो ओव्यूलेशन कब होगी, तो यू विल सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 35, ओके। सो द आंसर विल बी 21st डे, दिस वन। इसी तरह अगर वो कह दें आपको कि 24 डेज का साइकिल है, ओव्यूलेशन कब होगी, तो यू विल सब्ट्रैक्ट 14 फ्रॉम 24, तो 10th डे पे हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत रिपीट किया जाता है। बस आपने 14 माइनस कर देना जितने भी आपको नंबर ऑफ डेज साइकिल के दिए हुए उसमें से, ठीक है। ओके, इन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल माइटोसिस डजंट अकर इन मेंस्ट्रुएटिंग एंडोमेट्रियम। हमने पढ़ा है माइटोसिस होती है और बहुत फ्रीक्वेंटली होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, जिसकी वजह से थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, 3.5 to 5 mm हो जाती है। एंडोमेट्रियम रीजनरेट्स फ्रॉम द बेसल लेयर। Proliferative changes in the endometrium are caused by estrogen and progesterone. No, they are caused by estrogen. Basal vacuolation is a late sign of ovulation. No. Endometrial cystic hyperplasia is sign of ovulation. No. So here the correct option is endometrium regenerates from the basal layer. जब आप MCQ सॉल्व करोगे, मैंने पिछली बार स्टूडेंट्स को ये बताया था कि स्टेटमेंट की फॉर्म में अपने पास लिखते जाना, ठीक है। तो जब आप रिवाइज करोगे आपको पूरे MCQs दोबारा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब आप सारे ऑप्शंस पढ़े होते हैं तो टाइम वेस्ट होता है। जब आपके पास एक स्टेटमेंट पर आ जाएंगी फिर उसकी रिवीजन 2 to 3 टाइम्स आप बहुत ईजिली कर सकते हो, और एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको माइंड में वो स्टेटमेंट्स याद आ रही होती हैं जब आप पूरी स्टेटमेंट्स MCQs की पढ़ रहे होते हो, ठीक है। ये वो 5 MCQs हैं जो कॉमनली रिपीटेड हैं। अब हम कुछ और MCQs जो मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे थे वो देख लेते हैं, ठीक है। स्टेडी राइज इन ईस्ट्रोजन इनहिबिट्स FSH एंड LH, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। फॉलिकुलर फेज में जैसे स्टेडी राइज हो रहा था और FSH का लेवल फॉल कर रहा था नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू। लेकिन ये स्टेडी राइज है जो इनहिबिट कर रहा है FSH और LH को। लेकिन जब भी बर्स्ट ऑफ ईस्ट्रोजन आता है तो क्या होता है, LH सर्ज हमने पढ़ा था उसकी वजह से, तो वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है FSH और LH को, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन का दोनों रोल हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उसका पैटर्न ऑफ राइज क्या है। अगर स्टेडी राइज है तो वो इनहिबिट करता है FSH और LH को, और अगर एकदम से ईस्ट्रोजन बर्स्ट आ रहा है तो LH सर्ज होता है, LH और FSH को वो स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लैक्टेशनल एमेनोरिया जो है इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ आता है।
इसमें मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह CPSP 2 करेक्ट ऑप्शन देती है और आपने किस तरह GnRH इनहिबिशन ही वहाँ सिलेक्ट करनी है। लैक्टेशनल एमेनोरिया कहते हैं कि GnRH इनहिबिशन की वजह से बेसिकली इसमें क्या होता है, प्रोलैक्टिन का लेवल जो होता है वो राइज कर रहा होता है, ठीक है। सो प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये GnRH इनहिबिशन करता है। अब CPSP जो है ना आपको दोनों ऑप्शन देती है वहाँ पे, प्रोलैक्टिन का राइज भी बताती है और GnRH इनहिबिशन भी बताती है, लेकिन आपने जो करेक्ट ऑप्शन वहाँ मार्क करनी है, अगर दोनों दिए हुए हैं तो वो GnRH इनहिबिशन है। लैक्टेशनल एमेनोरिया बेसिकली GnRH इनहिबिशन की वजह से हो रहा होता है। अगर ये नहीं है तो फिर प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होता है, वो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, इन मिड ल्यूटियल फेज वी हैड स्टडीड कि बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो दोनों इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वी स्टडीड के प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। एंड मेनोपॉज इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एफएसएच एंड एलएच एंड लो एस्ट्रोजन, ये भी एक कॉमनली रिपीटेड एमसीक्यू है। oocyte surrounded by flat epithelial cell is known as primordial follicle, ये राबिया अली में भी और ये काफी बार आता है, primordial follicle की definition पूछते हैं, okay। Follicular growth is fastest during the second week of follicular phase, इतना oftenly repeated नहीं है लेकिन ये भी आया हुआ है past MCQs में। Estrogen stimulates endometrial proliferation, we know this. And progesterone maintains endometrium to support implantation by its secretory activity. Okay, ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर लो, ये भी कॉमनली रिपीटेड है एमसीक्यूज में, और जो हमने 5 एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं वो भी, ठीक है। ओके, हम क्वेश्चंस लेते हैं साथ साथ। साथ साथ मैं आपको थोड़ा नेक्स्ट सेशन का भी बता देती हूँ। Did you do BHU periphery job to get induction in Holy Family? No, I think I was lucky enough. मैंने सिर्फ 2 months के लिए BHU किया था और उसके ऑब्वियसली कोई मार्क्स नहीं होते हैं, लेकिन मैंने जनवरी में जब अप्लाई किया था लेफ्ट ओवर सीट्स में इंडक्शन हो गई थी। सो बेसिकली पढ़ाई के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज़्यादा करनी है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो प्लीज़ आस्क। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट सेशन की रजिस्ट्रेशन हो रही है उसमें बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं। आई थिंक जो भी लास्ट टाइम मैंने चेक की थी 4 to 5 रह गई थी, आई थिंक या 6 इसके अराउंड थी। सो जिन्होंने रजिस्टर करना है उनको रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हम साथ दे देंगे, ठीक है। जो हमारे मेन चीज़ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ वो आप पुट इन करते रहें, मैं साथ साथ देख रही हूँ। मेडिसिन एंड एलाइड है हमारे, सर्जरी है, ऑब्स गाइनी, रेडियोलॉजी, आई ENT डेंटिस्ट्री, ये सब है, ठीक है। पेमेंट के लिए अकाउंट डिटेल्स एंड पेमेंट ऑप्शंस वो सारी हम मेंशन कर देंगे। और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे आपकी एक्सेस होगी टू ऑल द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। मेंटोर्स से भी आप लोग इन कांटेक्ट होते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्टिव होते हैं स्टूडेंट्स एंड मेंटोर्स। और पहले एक बात जो अभी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह सेशन उनके लिए, कि जब आप लेक्चर्स लास्ट टाइम जो थोड़ा सा इश्यूज थे वो ये थे कि लेक्चर्स प्रोवाइड करने का ना आपको बेसिक हमारा एम ये था कि आपका टाइम भी कंजर्व करें और आपको बार बार बुक्स ओपन ना करना पड़े, आपको एक ही जगह पे सारा मटेरियल मिल जाए।
लेक्चर्स पूरी डिटेल्स में मैं ये ऑब्स गाइनी से रिलेटेड आपको बता रही हूँ, ठीक है। बाकी आपके मेंटोर्स, बाकी जो डिसिप्लिन्स के हैं वो आपको गाइड करेंगे। आपने पूरे पूरे लेक्चर्स नोट डाउन नहीं करने। जो चीज़ आपने नोट डाउन करनी है वो आपने एमसीक्यू सॉल्व करते हुए उनको स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये एक आपने पॉइंट नोट एमसीक्यूज नोट डाउन करने। और अगर आपको सॉल्व करते हुए लेक्चर सुनते हुए ऐसे लग रहा है कि पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको नहीं याद रहेगा, वो आप नोट कर लो, लेकिन पूरे पूरे लेक्चर्स नोट करके उसमें बार बार लेक्चर्स को ही रीड करके उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जब एक बार आपने लेक्चर्स कवर कर लिए, बस उसके बाद आपने ना अपने एमसीक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है। उन्हीं को आपने बार बार रिवाइज करना है लेक्चर से एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप करके। इससे रिलेटेड जो है ना, ये जो भी हमने टॉपिक कवर किया है इससे रिलेटेड, और कुछ स्टूडेंट्स को ये लग रहा होता है कि 10 टीचर्स आपने पढ़नी है, तो वो आपने अपने पार्ट 1 के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़नी। आपने वो आईएमएम का की बुक है, ठीक है, वो आपने अपने पार्ट 1 के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। पार्ट 1 के लिए जितना हम आपको जहाँ जहाँ से कह रहे हैं आपने बस वो स्टडी करना है। और इस टॉपिक को ये लेक्चर कवर करने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है। Excuse me. Hello. मैं डॉक्टर अजीम बात कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे। यस प्लीज, आप सब अपने क्वेश्चंस जी पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कोर्स डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। हमारे जो स्पेशलिटीज़ पे जिन पे हम फोकस करते हैं, देयर आर मेडिसिन एंड अलाइड, लाइक आई सेड अर्लियर, सर्जरी एंड अलाइड, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, ऑब्स गायनी, ईएनटी, आई एंड डेंटिस्ट्री। And the course format, it includes discussion of our basic topics that are tested in FCPS 1 exam, and we have video based lectures एंड लाइव सेशंस। अगर आपसे कोई और चीज़ मिस हो गई उसके दौरान, लेटेस्ट गोल्डन फाइल्स डिस्कस होती हैं। एट द एंड ऑफ द कोर्स आपके सारे मॉक एग्जाम्स होते हैं और मल्टीपल टेस्ट साथ साथ चलते रहते हैं। जो भी कोर्स स्टार्ट हो रहा है 20 अक्टूबर से। कोर्स की हमारी ड्यूरेशन 3 मंथ्स की होती है। मेंटोर्स, आपके चीफ मेंटोर डॉक्टर अहमद हसन हैं, बाकी डॉक्टर हमाद हैं, डॉक्टर हुमा मे, डॉक्टर अली, डॉक्टर मोविज़ एंड डॉक्टर तैमूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं पूछना चाह रहा था कि ये सारी डिसिप्लिन आप अलाइड मेडिसिन सर्जरी तो ये करवा रहे हैं, तो जब लेक्चर्स डिलीवर होंगे तो गायनी मेडिसिन सर्जरी इनके नहीं इनमें थोड़ा सा जी, डिफरेंस तो होगा, ये सेम होंगे कैसे सारे?
नहीं नहीं, बिल्कुल डिफरेंस होगा। जो हमारा पेपर ए के लिए जो आपकी बेसिक जो वर्कशॉप्स करते हैं ना सारे ऑर्गन सिस्टम पे भी सब कुछ, वो आपका अलग होता है, ठीक है। ओके और फिर बाकी जो गायनी के लिए टॉपिक्स हैं सब कुछ वो अलग से है, जंबल अच्छा अप नहीं तो होता सारा, आपको सारा कुछ अलग अलग सब प्रोवाइड किया जाता है। ओके जो जिन्होंने जिस डिसिप्लिन में करवाया होगा उनको फिर आप आगे अलग बिल्कुल से डिवाइड कर देते हैं। ओके जी, ओके हम सारी उनको एक्सेस उसके अकॉर्डिंग देते हैं। जिस तरह आप ऑब्स गायनी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो पेपर ए के लिए अपना ये सारा कुछ करेंगे जो आप सब करोगे, ठीक है, मेडिसिन एंड लाइट सर्जरी ये सब वाले। और जो उनको मैं एडिशनल चीजें दूंगी वो जाहिर है एम्ब्रियोलॉजी की अलग से उनके लिए लेक्चर्स होंगे सारे, पेल्विस पेरिनियम की ओके सबको एक्सेस होगी, लेकिन जाहिर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट गायनी वालों के लिए है, ठीक है। लेक्चर्स की एक्सेस आप सबको होगी, ठीक है। अब डिपेंड ओके करता है आपने कौन से उसमें किस पे फोकस करना है। ओके ओके थैंक यू। वेलकम। ओके नेक्स्ट, जिन्होंने रजिस्टर करना है ये लिंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है और अभी नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्म आपने फिल करना होगा थ्रू बैंक ट्रांसफर या इजी पैसा के थ्रू, आपने अपनी कोर्स फीस सबमिट करानी होगी, ठीक है। बैंक डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। जो पेमेंट है उसमें वन टाइम पेमेंट जो है वो आपकी 85, जो मेडिसिन सर्जरी गायनी डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के लिए है, ठीक है, वो वन टाइम पेमेंट आपकी 8500 होती है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे देनी है तो फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 3000 6000 है, ठीक है। और जो IENT डेंटिस्ट्री वालों के लिए वो वन टाइम पेमेंट 9500 है, और अगर इंस्टॉलमेंट्स में आपने करनी है तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 4000 है और सेकंड जो है वो 6000 है। कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड, देन आई कैन अनम्यूट एंड आस्क। कि वेबिनार वीक का स्केड्यूल जो अब आगे चीज़ें हैं, कल डॉक्टर हुमा विल बी प्रोवाइडिंग लेक्चर ऑन पेरिकार्डियम इंशाल्लाह, और उसके बाद डॉक्टर तैमूर संडे को देंगे मैकेनिकल एंड एडहेजन प्रॉपर्टीज ऑफ डेंटल मटेरियल्स के डेंटिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए। डॉक्टर मोविज इंशाल्लाह मंडे को देंगे इसोफेगस पे, ट्यूसडे को डॉक्टर अहमद इंशाल्लाह न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स पे। ओके अगर और कोई क्वेश्चन है तो लेट्स एंड इट। Thank you so much everyone for joining and I hope it was helpful. Allah Hafiz.